first formula is from first year. So P of A union B. P of A union B means that P of A or B. Union means or. P of A or B, which is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. So P of A intersection B also termed as P of A and B. Right? One more is if A and B are mutually exclusive or disjoint events, then P of A intersection B is 0. Mutually exclusive means null set. Intersection of the two sets is null set. Okay. Intersection of the A and B is null set. That is called mutually exclusive. Therefore, its probability is 0. Whenever A and B are mutually exclusive or disjoint event, then what is P of A union B? So P of A union B is equal to P of A plus P of B. So this question is asked me last year. That is P of A is given 4 by 5, P of B is 1 by 5. Then what is the value of P of A union B if A and B are mutually exclusive? Simple, that is add. P of A and B is P of A plus P of B. 4 by 5 plus 1 by 5, 4, right? Remember, if A and B are mutually exclusive events, so P of A union B is equal to P of A plus P of B. Okay? Then, now from second construct. So probability of one event when an event takes place in past, right? But to find out probability of one event, given that another event is already takes place, वो एक इवेंट पहला ही हुए रहना चाहिए, वो ऑलरेडी हुए रहता है, तो और एक इवेंट का हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज चाइल्ड, वो ऑलरेडी मान रहते हैं क्या है, दैट बॉय और गर्ल पता ही रहता है. सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑन द डाइस, पेयर ऑफ डाइस 6, तो हमें पता रहता है वो डाइस कौन से, रेड है ब्लैक, कौन से पता रहता है, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. या समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बॉल, बैग में से बॉल निकाल रहे हैं, वो हमें मालूम रहता है बॉल कौन सा है, रेड है क्या ब्लैक है या ग्रीन, राइट? ऑलरेडी पता रहना. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट व्हेन अनदर इवेंट इज टेक्स प्लेस इन पास्ट. एक पास्ट में इवेंट हुआ रहता है, तो मैं एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, उसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. So it is given by probability of A bar B. So meaning क्या होता है? Probability of A when B has already takes place. ये जो present में है वो है, और B ने already past में रहता है, right? So probability of A bar B पढ़ते हैं उसको. So defined as P of A intersection B divided by P of B. याद रख लो. P of A bar B equal to P of A intersection B divided by P of B. So this is the conditional probability of A, right? Or probability of A when B takes place in past, right? Similarly, we can find P of B bar A, that is equal to P of A intersection B divided by P of B. P of A. P of B bar है, इतना छोटा डिनोमिनेटर P of A कर लेना, इधर डिनोमिनेटर P of B, राइट? इधर A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A एक ही हो जाता है. So P of B bar A, P of A intersection B divided by P of A, and P of A bar B is P of A intersection B divided by P of B. This is the formulas for conditional probability.
Now, on this some properties. So properties on conditional probability. Okay. So P of A dash bar B. A dash means not A. फर्स्ट ईयर हुआ है ना, P of A dash फाइंड करने वाले तो क्या करते हैं आप, P of not A मतलब वन माइनस टोटल वन माइनस P of A. टोटल प्रोबेबिलिटी इज वन माइनस P of A. ओके, सो P of A dash. सो नाउ P of A dash बार B क्या आ जाता है, ऐसा ही तो आप ये डेफिनेशन डिफाइन किए तो P of A dash इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P of B आ जाता है, राइट. P of A dash इंटरसेक्शन B मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, P of A dash इंटरसेक्शन B नॉट A एंड B, नॉट A एंड B मतलब B लेना A नहीं, ओनली B ऐसा बोल सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली B बोल सकते हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट A. दैट मीन्स A dash इंटरसेक्शन B या तो B इंटरसेक्शन A dash भी ले सकते हैं, A dash इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A dash. तो इसे कैसा डिफाइन करना ले, B लेना जो A में नहीं आना. तो तुम्हें समझो वेन डायग्राम डालने लगे तो सेट्स में ये रहता है, ये B रहता है. B लेना है, A में नहीं आना ना. अब ये मैंने माइनस करना पूरा, तो ये छोड़ना है पूरा, A तक B उतना B तक लेना कभी आता है, करेक्ट है. ओनली B ये नहीं आएगा, ये एक्चुअली B का है वो, बट A भी है इसमें, तो ये दोनों का कॉमन है, उसे बोलते हैं ये इंटरसेक्शन. तो वो नहीं लेना हमें क्योंकि वो ये का है ना. तो अभी पूरा B ले को ये उतना निकाल छोड़ने का, तो आपको क्या मिलता है, ओनली B. ये पूरा लेना, राइट, ये इतना निकाल देने का, माइनस करना. सो देन व्हाट हैपेंड, व्हाट वी गेट, ओनली B. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B, पूरा सर्कल आ गया B, माइनस क्या करना, ये कॉमन माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B. करेक्ट है. सेपरेट डिवाइड कर लें तो क्या आ जाता है, P ऑफ B बाय P ऑफ B 1 ना, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B. Okay, so then 1 minus, so what is P of A intersection B of P of B, this is equal to क्या आ जाता है, P of A intersection B by P of B is P of A bar B आ जाता है. तो याद रख लो, P of A dash bar B is 1 minus P of A bar B. डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, P of A dash bar B equal to 1 minus P of A bar B आ जाता है. फाइंड किया तो P of B dash bar A किया तो A bar B dash bar A किया तो क्या आ जाता है, 1 minus P of B bar आ जाता है. चलो ऐसे हम P of A dash नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी करें, P of A bar B dash किया तो क्या आ जाता है, अब A bar B dash है, अब क्या आता है. तो मैं अभी अगेन 1 सेकंड डिफाइन कर लेता हूँ. P of A इंटरसेक्शन व्हाट B dash है ना, डेफिनेशन के हिसाब से A बार B मतलब P of A इंटरसेक्शन B बाय P of B. तो इसी तरह P of A बार B dash क्या जाता है, P of A इंटरसेक्शन B dash डिवाइडेड बाय P of B dash. तो A इंटरसेक्शन B dash का मीनिंग क्या होता है अभी, A ओनली A नॉट B, ओनली A ये लेना है, ये लेना पूरा, नॉट B का तो ये B बार छोड़ना है, ये लेना ना. तो कैसा लेना है अभी, P of what, P of A माइनस इंटरसेक्शन P of A bar B dash, that is equal to P of A intersection B, A intersection B dash मतलब क्या, P of A माइनस P of A intersection B डिवाइडेड बाय P of B dash. P of B dash मतलब 1 minus P of B ऐसा जाता है. हाँ यार, P of A bar B dash. ओके, ऐसा. और एक हम थर्ड प्रॉपर्टी करने लगे तो P of A dash bar B dash करके देखेंगे क्या आ जाता है.
पी ऑफ ए डैश बार बी डैश, एक फार्मूला बना सकते हैं पी ऑफ ए डैश बार बी डैश, तो वैसे ही डिफाइन कर लेना। तो व्हाट इज पी ऑफ ए डैश बार बी डैश, कैसा डिफाइन करते हैं? पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कहाँ तक वेन डायग्राम लेते हम, ये है ना, ये कर रहा हूँ इसको बी समझा, ये भाई ए एंड बी क्या आ जाता है, ये ना ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब वो छोड़ के आ जाता है राइट, तो फिर पूरा ये पूरा लेना, उसमें से क्या निकल लेना, ये देखिए ए डैश तुम्हें शायद मालूम है डी मॉर्गन्स लॉ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी, मतलब समझ सकते हैं, ये नॉट ए नॉट बी, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, मतलब दोनों भी नहीं, अभी और मतलब दोनों में आ गए ना, ए और बी, डैश मतलब दोनों भी नहीं जाता, नहीं तो ही हो जाता, नाइदर ए नॉर बी मीन्स ए यूनियन बी, ए और बी डैश राइट, ए और बी डैश, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अभी इसको पी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी डैश। अब पी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश कैसा करते हैं, ए यूनियन बी डैश, अभी तो मैं इसको पूरा एक डैश ए डैश समझा इसको, पी ऑफ ए डैश, अच्छा टोटल में से उसे निकालना, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी ऑफ बी, ये याद रख लो, तुम्हारे एग्जाम्पल्स पे कॉलम में है वो, पी ऑफ ए डैश बार बी डैश इज इक्वल टू 1 minus P of A union B divided by 1 minus P of B. Okay. The next is P of A bar B dash. Whole dash क्या कहता है फिर? ये simple. Whole dash separate नहीं है. 1 minus P of तो simple 1 minus P of A bar B. तो A same is equal to P of A dash bar B. मतलब सिर्फ A को भी dash रहा तो उतना ही होता है, whole dash रहा तो उतना ही होता है. याद रख लो, ये भी याद रखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी ए डैश डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट ईयर से, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा तो क्या करना, दैट इज डायरेक्ट 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, एक्चुअली ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है ए यूनियन बी होल डैश, ये यूनियन बी होल डैश प्रॉपर्टी कैसा करते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, तो ऐसा हम पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश के तो क्या होता है 1 minus P of intersection, नहीं इधर हाँ मतलब ये क्या होता है 1 minus P of intersection, 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ तक लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। इवेंट्स किसको बोलते हैं, independent events. So E and F are two independent events are said to be independent if P of A intersection B is E intersection F is equal to P of E into P of F. याद रख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। P of A intersection E intersection F is P of E into P of F, into करना प्लस में, right? P of E intersection F is P of E into P of F. ऐसा कब लेना? If E and F are independent events, not dependent, independent events. Okay? तो ऐसा ये लेकर हम P of E bar F डायरेक्ट लिख सकते हैं, P of E bar F, अगर मैं डेफिनेशन गया तो क्या होता है P of E bar F का P of E intersection F divided by P of F, but when E and F are independent, डिनोमिनेटर क्या बन जाता है P of E into P of F, तो होल डिवाइडेड by P of F,
तो ये दोनों गए तो बचा पी ऑफ ई। मतलब याद रखना पी ऑफ ई बार एफ पी ऑफ ई, तो ऊपर का आता न्यूमरेटर का पी ऑफ ई बार एफ मतलब पी ऑफ ई कब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो ऐसा पी ऑफ एफ बार ई क्या हो जाता है फिर पी ऑफ एफ हो जाता है। पी ऑफ एफ बार ई पी ऑफ एफ ई बार एफ पी ऑफ ई इंडिपेंडेंट इवेंट रहे तो याद रख लो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, their complement also independent, their complements also independent। क्या मतलब कॉम्प्लीमेंट्स का? डैश हाँ ए डैश बी डैश। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं फिर पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ए डैश एंड बी आल्सो इंडिपेंडेंट, A and B dash also independent, A dash and B dash also independent, right? अगर A और B इंडिपेंडेंट है ना तो A dash and B इंडिपेंडेंट हो जाता है, A and B dash इंडिपेंडेंट हो जाता है और A dash and B dash also इंडिपेंडेंट। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना फार्मूला, फिर क्या बोलो P of A dash into P of B हो जाता है, सिंपल। ऐसा जब भी P of A इंटरसेक्शन B dash क्या हो जाता है P of A into P of B dash है। ऐसा जब P of A dash इंटरसेक्शन B dash क्या हो जाता है P of A dash into P of B dash। कंसेप्ट है वो तो तुम्हारे प्रॉब्लम यूज करना पड़ेगा उसके बेस थ्योरम में, तुम्हें एग्जांपल यूज करना उसके। वो अभी यहाँ प्रॉब्लम का थ्योरी अलग है, उसका प्रॉब्लम्स अलग रहते हैं, फिर भी फॉर्मूला देता हूँ मैं आपको बेस थ्योरम। एग्जाम्पल में एक भी प्रॉब्लम नहीं है इसके ऊपर, बट यही बात है वो ये आ जाएगा बेस थ्योरम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज E1 E2 so on En are the set of events also called partition of sample space बोलते हैं इसको, partition of sample space। एक कब होता है partition of sample space, मतलब है ना ये पूरा सैंपल स्पेस है, ये डिवाइड हो जाता है ये सभी, राइट। ये सभी E1 E2 E1 सभी है, राइट, E1 E2 so on En एक्सेट्रा। अभी और एक इवेंट लेता हूँ मैं, ऐसा लेता हूँ कि उस सब में रहता कॉमन यही, ये इज वन इवेंट व्हिच बिलोंग्स टू ऑल दिस, राइट। तो भी इवेंट कैसे देखो ये पार्टीशन सब इनका इंटरसेक्शन नल सेट आ जाता है, दिस ये इनका कॉमन है, ऐसा नहीं रहता मतलब किया जाता है, राइट। दिस मच ओनली मींस देयर इंटरसेक्शन इज नल सेट रहना। सो E1 E2 शुड बी नल सेट, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मींस नेक्स्ट E2 E3 आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, E3 E4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लाइक दिस, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो चाहिए। They should be pairwise mutually exclusive, means दो मिला के mutually exclusive होना। एंड सबका यूनियन निकाला तो क्या होता है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 so on यूनियन En, that is equal to total S। सब आया था ना पूरा, ये नहीं मतलब सब एक लेना सब लेना, तो पूरा सैंपल स्पेस रहता है। सो देयर यूनियन शुड बी सैंपल स्पेस, पेयरवाइज mutually exclusive and union that is sample space, therefore they are also called mutually exhaustive events। exhaustive means their union should be event probability of ये क्या है ना सब में रहता है, राइट। तो अब क्या करना हमें, probability of any one of the event even whatever it may be, ये आया समझो में, when A has already passed ना, वो वैसे है ना सब में वैसे इवेंट है ऑलरेडी। समझो ये डॉक्टर कमिंग टू विजिट द पेशेंट, हाँ बाय ट्रेन आ रहा समझो,
a nearby bus, by vehicle, by motorcycle, ये सभी आ रहा है और क्या हो रहा है ऑलरेडी पास क्या है वो लेट आ रहा है बरोबर है डॉक्टर कमिंग टू विजिट द पेशेंट बाय ट्रेन वन इवेंट वहाँ by bus another event, by bicycle another event, but he is come late. एक already past event था वो already late है उन्हें मतलब वो इवेंट जो लेट आया ना वो एक इवेंट ये तो अभी क्या करना है हमें वो लेट जो आ रहा है ना वो बस से आ रहा है कितना चांस लेट आने का चांस कितना है फाइंड करना है मतलब बस से उसको लेट कितना चांस से हुआ है या ट्रेन से कितना चांस लेट हुआ है उसको we have to find the probability of any one of the event when A already takes place, right? So P of EI बारह ये, so that is equal to क्या आता है formula? P of EI into P of A bar EI divided by सब पूरा ये करें ना probability summation of PA means that is P of EI P of A bar EI plus P of EJ into P of E bar EJ so on etc. ऐसा क्या डायरेक्ट फॉर्मूला का तो ऐसा P of EI into P of A bar EI divided by sigma summation of P of EJ into P of A bar EJ where J equal 1 to n, right? That is P of E1, P of A bar E1 plus P of E2 into P of A bar E2 plus so on plus P of En, P of A bar En. सब पूरा ऐड करना टोटल प्रोबेबिलिटी लेना सबका लेना राइट दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द पार्टीशन ऑफ सैंपल EI व्हेन A had already takes place, राइट ये बेस है उतना का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रैंडम में इसके लिए सीटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है Now random variable and probability distribution. Random variable probability distribution. Random variable means it is a real number, real value associated to the each outcome. Alright, it is a real function बोल सकते हैं. It is real value associated to each outcome. Suppose, for example दे रहा हूँ मैं. Suppose the coin is tossed 2 times. तो क्या आता है sample space? S equal to what? HH, TT, HT, TH आ जाता है. Suppose let X is defining that X is the event such that getting heads at least one head, at least one header. तो क्या है उसमें आउटकम्स HH, THT और TH है ना? HH, HT, TH at least one header. तो x का वैल्यू यहाँ लिखना है इधर हमने. How many heads in this? 2. तो x का वैल्यू कितना होता है? 2 जाता है. Right? So here how many heads? 1 head. Here how many head? इधर हेड कितना है? 0. ये 1 करते दोनों आ जाते हैं. तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? 0, 1, 2. 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है या तो 2 हेड आ सकता है. These type of values वो रैंडम वेरिएबल हो जाते हैं. राइट? अंडरस्टूड? ये रैंडम वेरिएबल. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है? ये सभी ऐसा लिखना 0, 1, 2. These are the value of x. ये important है सीटी के लिए. X value 0, 1, 2. Now we have to write the probability of this random variable. Okay, 0 x 0 means how many outcome having 0 header? 1 total out of 4. नंबर 4 आ जाता है probability उसका. और 1 header कितने हैं? 2 है ना.
1 इंटू 2 है, 2/4 है, 1/2 आ जाता है। 2 8 हाउ मेनी आउटकम्स 1 1 का स्क्वायर, टोटल कितना आता है 1। ये में है समेशन ऑफ px इज ऑलवेज 1, ये में है राइट। ये इसके ऊपर एग्जांपल आता है जब सीईटी के लिए तो कुछ भी समथिंग के वो डाल देते हैं वेरिएबल के पी एक्सेट्रा, वो वैल्यू फाइंड करने बोलता है। तो क्या करना हो, पूरा ऐड करो इक्वल टू 1 करने का, ये सभी ऐड करने का इक्वल टू 1 लेने का, तो आपको के मिल जाता है आराम से राइट। वट एवर अननोन हियर प्रोबेबिलिटी वी कैन फाइंड दैट by taking the summation equal to 1. This add take equal to 1 means total probability that is 1, then we can find that k unknown. Okay, this is called probability distribution. मैं कॉलेज में कर रहा हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मूला देके सकता हूँ। ये कब यूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इफ नंबर ऑफ ट्रायल्स मोर, ज्यादा वेगने ट्रायल्स लेने के लिए इसको थोड़ा ज्यादा लेना, वो 2-3 बार डाल के क्या जरूरत नहीं उसकी, एक 10 बार 50 बार लॉटरी करने लगे तो यूज करना। सपोज इफ आर टेकिंग टिकट लॉटरी टिकट 50 टाइम्स, तो आपको मुश्किल हो जाता है काउंट करना, हो क्या क्या आ रहा है सभी कितने बार क्या आ रहा है रिजल्ट फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू मेक द सैम्पल स्पेस और काउंट द आउटकम्स, देन वी कैन यूज दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो चलो भाई कोई ऐसा एक्स पी ऑफ एक्स लिया तो या 0 1 2 सो ऑन, लेट कंसीडर एक्स राइट एंड n। ओके, तो इधर क्या आता है binomial distribution, so we suppose we write q plus p raised to n ना, binomial distribution, binomial मतलब q plus p raised to n, so that is equal to what, nc0 nc0 q raised to n plus nc1 q raised to n minus 1 p right, plus nc2 q raised to n minus 2 p square plus what x लिख रहा हूँ मैं भी, ncx q raised to n minus x p raised to x plus so on plus ncn p raised to n. Suppose n is the number of trials. Here what in 0 that x equal means x is this x no 0 1 2 3 x is random variable it is. ये जो है ना 0 1 2 this on x to n that is random variable. Means here 0 सपोज आई टेक एक्स सक्सेस लेता हूँ मैं, एक सपोज सक्सेस, अभी कुछ भी पढ़ सकते हैं ना, टॉस करने बाद हेड आ सकते हैं, हेड सक्सेस लिया हमें तो फेलियर क्या होता है टेल हो जाता है। या सपोज हम कुछ भी लॉटरी निकाल रहे हैं तो एक क्या हमें जो मिले वो आया हमें सक्सेस हो गया। सपोज व्हेन अ डाई इज थ्रोन गेटिंग इवन नंबर सक्सेस हुआ, तो एक्स मींस हियर सक्सेस। अब ये एक्स 0 मतलब क्या, 0 सक्सेस, नो सक्सेस मींस फेलियर, पूरा फेलियर मतलब क्यों आ जाता है ना, पूरा क्यों आ रहा है इसमें, मीन्स क्यू मीन्स फेलियर प्रोबेबिलिटी, पी मीन्स सक्सेस प्रोबेबिलिटी। So here q is the probability of failure, and p is the probability of success, okay। nc0 q raised to n, मतलब कितने ये, this is the probability of which one, 0 success, या 0 success लेता, 1 success देखिए 1 success आया तो q में से एक कम हुआ ना, एक success p आ गया था, p raised to 1 right, that is 1 success, nc1 q raised to n minus 1 p, 2 success देखिए nc2 q raised to n minus 2 p square, x सक्सेस x सीधी आ जाता है, ncx q raised to n minus x p raised to x, n सक्सेस का तो पूरे सक्सेस हो गए, फेलियर नहीं है तो ये p उतर चला जाता है इसमें, ncn p raised to n, क्यों नहीं है ना इसमें, q means probability of failure गया था पूरा सक्सेस, so ncn p raised to n, this is n सक्सेस,
दिस इज एक्स एक्सिस, तो हम ए ले सकते हैं जनरल फार्मूला, राइट, जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं बिकॉज ये पर्टिकुलर है ना, 0 1 2, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अननोन कुछ भी ले सकते हैं. सो दिस इज द जनरल फार्मूला टू फाइंड आउट द probability of number of the successes. So probability of x axis is ncx q raised to n minus x p raised to x. तो अब क्या पूछता है, probability of 10 सक्सेस पूछता है, x को 10 डालने का. सपोज probability of 5 सक्सेस, तो 5 10 सक्सेस हुआ, x को 5 डालने का. probability of 2 सक्सेस, तो 2 बार सक्सेस हुए में x को 2 डालना. सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस, तो कम से कम 5 बार सक्सेस हुए में, कम से कम 5 बार सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस, तो क्या आ जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, राइट. एट मोस्ट 5 सक्सेस आया तो लेस देन और इक्वल टू 5. अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू x समझो, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 समझे, तो x इक्वल क्या आता है 5, एक प्लस x इक्वल टू 6 प्लस x इक्वल टू 7 प्लस x इक्वल टू 8 प्लस सो ऑन, नंबर ऑफ टाइम ट्रायल 10 बार किया समझो, लास्ट x इक्वल टू 10 तक आ जाता है. Right? At most 5 success, number of trials 10. At most 5 success कैसा आ जाता है फिर, x equal 0, x equal 1, x equal 2, x equal 3, x equal 4, x equal to 5. Right? So this formula used to find the probability of number of successes. Okay? This is about theoretically part and probability. Now examples, multiple choice questions.